only one hadith, and we will try to connect other hadith of Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam and also some verses of the Holy Quran in order to explain the hadith. तो वो हदीस पाक क्या है? सही बुखारी में ये हदीस मौजूद है, सही मुस्लिम में हदीस पाक मौजूद है, और कई कुतुब अहादीस में. इवन इमाम मालिक, the Imam of Medina, Sayyidina Imam Malik rahmatullahi alayhi, has recorded this hadith. Imam Tirmizi, so many muhaddisun, and even in Bukhari Sharif आपको ये हदीस पाक दो अलग अलग बाब में मिल जाएगी. So हदीस पाक क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम mentions, Ana Muhammad, I am Muhammad, that is the most praised one, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की. वो Ana Ahmad, और मैं अहमद हूँ. I am Ahmad, the one who praises Allah Ta'ala the most. तो मोहम्मद का माना क्या हुआ? जिनकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई हो. अहमद का माना क्या हुआ? जो अल्लाह की सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला. वो अनल माही, I am the eliminator, मैं मिटाने वाला हूँ. अल्लज़ी यम्हुल्लाहु बिल कुफ्र, अल्लाह eliminates कुफ्र through me, मेरे जरिए अल्लाह ताला कुफ्र को मिटा देगा. वो अनल हाशिर, क़यामत के दिन मैं ही हाशिर रहूंगा. वो कैसे? अल्लज़ी युहशरुन नासु अला क़दमैया, हर इंसान मेरे कदमों तले होंगे. Everyone will be on the day of judgment under my feet. Who says? Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam. So everyone will gather under the flag of Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam on the day of judgment. Wa ana al-aqib, and aqib, the meaning of the aqib is I am the last one. That is, there is no prophet after me. There is no new prophet after me. So this is the hadith pak basically, and in some books with little variation, कुछ changes के साथ ये हदीस पाक मरवी है. And also there are similar ahadith. In this hadith नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे 5 नाम है, ली खमसतु अस्मा. और दूसरे अहादीस में इन्न ली अस्माअन, मेरे लिए कुछ अस्मा है. और कुछ हदीस में मेरी 5 खुसूसियात है. I have 6 special qualities, I have 5 special qualities. So different terms में different आपको रिवायतें मिल जाएगी. And in that hadith, the excellence of Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam has been mentioned. Now we are talking about the exalted names of Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam. Now first of all, meaning of Muhammad, the first part of the hadith. So we all know कि Muhammad का माना ये है जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई हो. The one who is praised the most, was praised in Alamul Arwah, was praised in the life of dunya, was praised in the life of the barzakh, is being praised even today, and will be praised even on the day of judgment. हर जगह पे हुज़ूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करनी है, इसके बगैर कोई चारा नहीं है. So meaning of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the most praised. अब आलमुल अरवा में हुज़ूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कैसे की गई? How it was mentioned, the praise of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So we all know there is a verse in the Holy Quran in Surah Al Imran where Allah Ta'ala mentions, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمٍ. The mafhum of the ayah is कि Allah Ta'ala ने तमाम नबियों की जमाअत से, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقًا नबिय्यीन, अल्लाह ने नबी का तज़किरा फरमाया. That means even in Alamul Arwah, all the souls of the prophets who were to be given the prophethood, to be sent as a prophet in this dunya, they are regarded as Nabi, as Anbiya in Alamul Arwah. And then Allah Ta'ala says, oh, the Jamaat of the prophets. Now this is in Alamul Arwah. During your worldly lifetime, if my Habib sallallahu alaihi wasallam appears, zahir hai, अल्लाह को तो सब मालूम है कि अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिर में भेजने वाला है as a seal of the prophets. Despite that fact, इसमें हिकमत क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के ताल्लुक से अंबिया किराम से फरमा रहा है that if these prophets, in front of these prophets, that during your time अगर मेरा हबीब आ जाए, लतुमिनुन नबी, you should surely believe in him, आपको जरूर उन पर ईमान लाना है. वलतनसुरुन्ना, and you should surely support him, आपको मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देना है, ईमान भी लाना है और साथ भी देना है. And then Allah Ta'ala mentions, अक़ररतुम, do you agree with this? क्या आप इसको इकरार करते हैं, इसको कबूल करते हैं? वअख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, ये भारी जो जिम्मा
heavy responsibility. Are you ready to take on this responsibility? That during your worldly life, for example, during the time of Hazrat Adam alayhi salatu wassalam, अगर मेरा हबीब आ जाए तो ए आदम आपको इन पर ईमान भी लाना है, मदद भी करना। अगर हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के दौर में हुजूर अलैहि सलाम तशरीफ लाए तो ए यूसुफ मेरे नबी अलैहि सलाम आपको मेरे हबीब पर ईमान भी लाना है और मदद भी करनी है। So do you agree with this? Are you ready to take this responsibility? All the prophets of Allah, their souls responded, Qalu aqrarna. Yes, Ya Allah, we agree. We are ready to take this responsibility. Then Allah Ta'ala, to emphasize further, Huzur alayhi salatu wasalam की शान को और भी मजीद दिखाने के लिए, उनका रुतबा और भी मजीद दिखाने के लिए अल्लाह ने फरमाया, बी विटनेस, एक दूसरे के गवाह बन जाओ। व्यारस अगर अल्लाह के नबी ने हाँ कह दिया कि ओके या अल्लाह, वी आर रेडी फॉर दिस, वी एक्सेप्ट दिस, वी एग्री विद दिस, तो फिरने का तो सवाल नहीं है। Yet to emphasize further, आप आपस में गवाह बन जाओ। For example, oh Musa, you agreed that you will bring iman and support my Habib sallallahu alaihi wasallam. Oh Yusuf, you also agreed, so be witness that Musa said this. Oh Musa, you be witness that Hazrat Yusuf alayhi salam said this. इब्राहिम alayhi salam, आप गवाह बन जाइए कि हजरत नूह alayhi salam ने ये फरमाया। नूह alayhi salam, आप गवाह बन जाइए कि हजरत ईसा alayhi salam ने ये फरमाया। So be witness. And Allah Ta'ala, to further emphasize, وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِ, मैं भी गवाह हूँ, I am also a witness that you all have agreed on this term that you all will believe in my Habib sallallahu alaihi wasallam and you all will support my Habib sallallahu alaihi wasallam. तो इससे क्या पता चला कि आलमुल अरवाह में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की गई। And this also elaborates कि ए जमाअत अंबिया, I have given you the prophethood, I have made you messengers, all because of my Habib sallallahu alaihi wasallam. तो हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से तमाम अंबिया किराम को नबूवत और तमाम रसूलान इज़ाम को रिसालत अल्लाह ने हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम के सदक़े में अता फरमाई। So now the first term, Ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and in that praise of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam in Alamul Arwah, this has been mentioned beautifully in the Holy Quran. How our Nabi sallallahu alaihi wasallam was mentioned in front of the ruh of the prophets of Allah. And I request you all, गुजारिश है कि ये जो बातें हो रही है, आप हो सके तो इसको नोट कर ले, बहुत मुमकिन है that this may help for your lectures, इसलिए कि यहाँ उलमा भी हाजिर हैं। मेरी गुजारिश है कि कुछ खामी नजर आए तो मेरी जरूर इस्लाह फरमाएं, और कोई बातें ऐसी लगे कि आप इसको अपने बयानात में शामिल कर सकते हैं तो मेक अ नोट ऑफ इट, इंशाअल्लाह दिस माइट हेल्प यू। And then praise of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam in this dunya. अब वो क्या हुआ? अल्लाह ताला के अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम ने वादा तो कर लिया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम did not appear during their worldly life physically. बहैसियत नूर हुजूर अलैहि सलाम सबको देख रहे हैं, he is aware of the entire creation, but physically he did not come to this world. तो अब क्या हुआ? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के सामने, अपनी औलाद के सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र फरमाया। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, he also mentioned the praise of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in front of his ummah. हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत इद्रिस अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, all the prophets of Allah, सब ने अपनी अपनी उम्मत के सामने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र फरमाया। तो क्या पता चला? In Alamul Arwah, the most praised one was whom after Allah Tabaraka wa Ta'ala? Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam. और दुनिया में जिस नबी का जिक्र हर नबी ने किया, let's say about 124,000 prophets, there may be less or more, about 124,000 prophets. तो कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम, all the prophets of Allah have praised Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. तब हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम की तारीफ सबसे ज्यादा दुनिया में भी की गई। And during the worldly life of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, the noble Sahaba, we have a list of about 32 Sahaba. तकरीबन 32 Sahaba किराम के अस्मा हैं जो शायर थे, they were poets and they were engaged in reciting, in writing qasida and praising Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. तो हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम के क़साइद नात पढ़ते थे सहाबा किराम, जिनमें मशहूर हजरत सैयदना हस्सान बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु, हजरत काब बिन अहबार रदियल्लाहु अन्हु और दीगर सहाबा. So these noble companions of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, उन्होंने हर वक्त सरकार अलैहि सलातु वस्सलाम ही की शान बयान की. To the extent
कि अपने बच्चों के सामने भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करते, इन फ्रंट ऑफ देयर चिल्ड्रन, इन फ्रंट ऑफ देयर फैमिली। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे ज़ेबा के ताल्लुक से बताते कि दिस वाज द ब्यूटी ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन शॉर्ट, नो वन वाज प्रेज्ड लाइक द प्रेज ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एंड अगेन, आफ्टर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम left this world, ताबईन का ज़माना, and those sahaba who were on the surface of this earth जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम विसाल फरमाए, after them the noble ताबईन, तबा ताबईन, बड़े बड़े इमाम, बड़े बड़े औलिया, everyone has praised रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो किस तरह? Let's say हजरत हसन बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु के अशआर, व अहसन मिनक लम तरक़त अय्न व अजमल मिनक लम तलिद निसा। एंड अगेन हजरत काब बिन अहबार रदियल्लाहु ताला, व अन्नक मअमून अला कुल्ली गाइब, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको हर गैब पर इत्तिला फरमा दी है। He has made you a trustee over all the unseen. व अन्नक मअमून अला कुल्ली गाइब, अल्लाह ने जितना गैब आपको दिया, जितना इल्म दिया, वो सब का सब आप जानते हैं, and you are the trustee for all the unseen by the bestowal of Allah. And this is recorded in Tafsir Ibn Kathir as well, who is the student of Ibn Taymiyyah. So Sahabi praising about the ilmul ghaib of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in front of Rasulullah sallallahu. तब हुजूर अलैहि सल्लम ने ऐसा क्यों नहीं फरमाया कि no, I don't have the knowledge of the unseen? No, because Allah has bestowed upon him. और सहाबा के बाद ताबईन का दौर, if you refer to the qasida of Sayyidina Imam Abu Hanifa, Imam al-Azam Nu'man bin Thabit radiyallahu anhu, where he mentions, Ya Sayyid as-Sadat, jiktuka qasida, सरदारों के सरदार, ओ द लीडर ऑफ द लीडर्स, सरदारों के सरदार, जिअतुका कासिदा, मैं आपकी बारगाह में या रसूल अल्लाह एज अ बिगर, मांगने के लिए, एक गधा बनकर, एक आपकी बारगाह में मांगने के लिए मैं आया हूं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्जू रिदाक वहतमी बिहिमाक, एंड आई सीक योर प्लेजर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। I seek your assistance या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपकी रिजा चाहता हूँ, आपका सहारा चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर। तारीफ करते करते आखिर में फरमाते हैं इमाम आज़म, अना तामिउन बिल जूदी मिनका वलम यकुल लि अबी हनीफा फिल अनाम सिवा, या रसूलल्लाह, आपके जूद व सखा का मैं प्यासा हूँ। अना तामि बिल जूदी मिनका, आपकी तरफ से जूद व सखा का, I am in thirst of your generosity या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वलम यकुन लि अबी हनीफा फिल अनाम सिवा, दुनिया में अबू हनीफा का आपके सिवा कौन है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। And if you go further, Sayyidina Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi, Sayyidina Imam Malik, Sayyidina Imam Ahmad ibn Hanbal, all the great imams, everyone have praised Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. हुजूर की तारीफ के बगैर कोई वली बन ही नहीं। No one can attain wilaya without praising Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam. And then the noble awliya such as Sayyidina Ghawthul Azam Shaykh Abdul Qadir Jilani during his worldly life, Sayyidina Imam Abul Hassan Ali Shadhili, Sayyidina Khaja Mu'inuddin Chishti, Sayyidina Bahauddin Naqshbandi, Sheikh Omar Shahabuddin Suhrawardi, Sayyid Ahmad Kabir Rifai, refer to their histories. They all have praised Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam. They have taught about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. यानी हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम की जितनी तारीफ की गई है, इतनी किसी की भी नहीं की गई। This is why आला हजरत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपने कलाम में इस तरह एक जगह फरमाया, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलाम मजीद ने खाई शहा तेरे शहरों कलामों बका, तेरा मसनद नाज है अर्श बरी, तेरा महरम राज है रूह अमी, तू ही सरवर हर दो जहां है शहा, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शहा, तेरे खालिक हुस्न अदा की कसम। अल्लाह ताला हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम को ऐसा बनाया, he created the figure, the appearance of रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम in such a manner कि हर किसी को देखकर तारीफ करनी ही है। So all the pious servants of Allah, सहाबा हो, ताबईन हो, तबा ताबईन हो, अइम्मा हो, बड़े बड़े अकाबिर औलिया हो, मुहद्दिसून हो, मुफस्सिर हो, सब ने सरकार अलैहि सलातु वस्सलाम की तारीफ की। And all the believers, whether they praise or not, for example, some followers of Wahhabism, they say कि नहीं हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम की तारीफ करने की क्या जरूरत है, कसीदा पढ़ने की क्या जरूरत है, देवबंदी followers क्या जरूरत है नाते पढ़ने की, वो भी हुजूर की तारीफ करते हैं। How?
by saying La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं। तो रसूल हैं कहकर हुजूर की तारीफ हो रही। So anyhow they are also engaged in praising Rasulullah sallallahu alaihi wasallam willingly or unwillingly. तो मुझे बताइए क्या दुनिया में कोई ऐसी जात है अल्लाह की मखलूक में जिसकी तारीफ इतनी की गई हो जितनी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गई और की जा रही है। अच्छा, इमाम आजम के कसाइद, उसके बाद आप देखें सैयदना इमाम जामी रहमतुल्लाहि अलैह, हजरत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाहि अलैह, हजरत सैयदना इमाम बूसरी रहमतुल्लाहि अलैह, हजरत इमाम जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि अलैह, बड़े बड़े बुजुर्गों ने कसाइद लिखे। और इमाम बूसरी रहमतुल्लाहि अलैह ने तो यहाँ तक फरमा दिया, अल्लाहु अकबर, कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शान तो ये है, फमबलगुल इल्म फीही अन्नहु बशर, इल्म की इंतहा, end of my knowledge and the knowledge of the creation is that या रसूल अल्लाह you are being sent as a human being, एक इंसानी शक्ल में अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में भेजा। फमबलगुल इल्म फीही अन्नहु बशर, लेकिन या रसूल अल्लाह you are such a creation, such a human being who came in form of human being in this dunya, wa annahu khayru khalqillahi kulli, तमाम मखलूक में सबसे बेहतर, the best of the creation is you या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। And further Imam Busiri rahmatullahi alayhi explains, मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न, उनके कमालात ऐसे हैं कि no one is equal to नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। He is free from, हुजूर से मुशाबिहत, हुजूर की तरह होने से सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान ही अलग है, उनकी तरह कोई है ही नहीं। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्न फीही गैरु मुनक़सिम। And then rest of the imams, the great awliya, and finally a century ago Sayyidi Ala Hazrat Imam Ahmad Raza rahmatullahi alayhi और दीगर हमारे बुजुर्गान दीन, सब ने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बयान की। So you can't show a single person who has been praised this much from the time of Anbiya Kiram alayhimussalatu wa taslim in alamul arwah, in this dunya, during the worldly life of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया से पर्दा करने के बाद आज तक, और आज से लेकर क़यामत तक, और इवन क़यामत के दिन भी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बयान की जाएगी। So none has been praised in this manner like of Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam, and this is the fact। अच्छा, another thing, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी शान तो ये है कि कब्र में भी उनकी शान बयान की जाएगी। Even we are praising Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam in our graves, when we will be in the graves, all the people who are in the graves, they are engaged in praising Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam। कैसे? Refer to the hadith, जब बंदे को दफन किया जाता है, फरिश्ते आकर उठाएंगे हजरत मुनकर और नकीर अलैहिमुस्सलाम, सवालात होंगे, मर रब्बुका, who is your Lord, मा दीनुका, what is your religion, and until he responds to the main question, सबसे अहम सवाल, मा कुंत तकुल फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, what do you used to say about this person, इनके बारे में क्या कहता, who will be there, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Now another thing to ponder, now we are talking about some aqaid from this hadith, related to this hadith। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे ताल्लुक से कब्र में सवाल किया जाएगा, फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में, that means हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम will be present in our graves। और सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, जब उनका विसाल हुआ तो हुजूर उनकी कब्रों में भी तशरीफ ले गए थे, whilst living in this दुनिया, on the surface of this earth। तो ये सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुसूसियत है कि लोगों के सामने, सहाबा के सामने भी हैं, और जिन सहाबा का इंतकाल हुआ उनकी कब्र में भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नजर आ रहे हैं। This is the beauty of Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam। Whilst being on the surface of this earth, he is being seen in the grave of a sahabi of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam। अब तो इस सवाल का जवाब सहाबा तो सहाबा, until we respond saying हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो अल्लाह के रसूल हैं, ये तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तारीफ हुई कि नहीं? We are recognizing, we are praising, saying हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल हैं। So even in the grave we are praising Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam। Now in light of the hadith, all the Muslims and all the munafiqin, they will be questioned। हर मोमिन और मुनाफिक से सवाल होगा।
सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के दौर से लेट्स से अबाउट 124,000 सहाबा, वो तो हज्जतुल विदा के वक्त थे। ड्यूरिंग हज्जतुल विदा दे वर अबाउट 124,000 सहाबा। उससे पहले कितने सहाबा का विसाल हुआ, कितने शहीद हुए, और कितने सहाबा दूर दराज मुल्कों में तबलीग के लिए तशरीफ ले गए। दे वर एंगेज इन प्रोपगेटिंग द मैसेज ऑफ इस्लाम। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये कि उस वक्त तकरीबन 1.25 लाख सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन मौजूद थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से पर्दा करने के बाद आज तक सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बयान की जा रही है। हुवा मुहम्मद रसूलुल्लाह, हुवा मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो तकरीबन 1.25 लाख सहाबा, उसके बाद लाखों ताबईन, एंड देन लाखों तबा ताबईन, and in millions and billions of Muslims. Obviously, today on the surface of this earth there are about 8 billion people. 8 billion लोग आज दुनिया में हैं, and the percentage of Muslims, let's say minimum करके, just for the sake of understanding, let's say 30%. Even if you take minimum side, 30% भी आप देख ले तो 8 billion में 30% almost 2.5 billion. तो 2.5 billion in today's life. 100 साल पहले कितने मुसलमान थे, 200 साल पहले कितने थे, 800 साल पहले कितने थे? सो इन मिलियंस। गरीब नवाज ने तो 90 लाख को इस्लाम में दाखिल, एंड देन उनकी औलाद कितने मुसलमान, तो लाखों करोड़ों मुसलमान मिलकर कब्र में हुआ मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्या दुनिया में कोई ऐसा है कि करोड़ों लोग किसी की तारीफ करें? अल्लाहु अकबर। एंड द मुनाफिक, दे विल से ला अदरी, मैं नहीं जानता। So they are not succeeded. Who will be succeeding? Those who recognize Sayyidina Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. And let's say, for the sake of argument, Sarkar alayhi salatu wa sallam ki shan. Now we are talking about still the term Ana Muhammad, I am Muhammad, the most praised one. Rasul Kareem sallallahu alayhi wa sallam ka dhikr in kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. In the azan, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. इकामत में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुतबे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम। जहां भी जाओ, नमाज में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देयर इज नो प्लेस विदाउट द रिमेम्बरेंस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हर जगह पे सरकार की शान, क्या किसी की इतनी तारीफ की गई है? नो। So now you understood the meaning, Ana Muhammad, the most praised, how Allah has exalted his remembrance. There is a verse in the Holy Quran, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Allah ने फरमाया, ओ हबीब, we have exalted your remembrance for you. हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, he descended. इस आयत की तफसीर में ये हदीस है। He asked, या रसूल अल्लाह, do you know how Allah has exalted you? अल्लाह ने आपके जिक्र को कैसे बुलंद फरमाया? How has he exalted your remembrance? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह जवाब दिया, अल्लाहु आलम, Allah knows best. तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह से जअलतुका ज़िक्रम मिन ज़िक्री, ए मेरे हबीब, हमने आपको हमारे जिक्र में से एक जिक्र किया। यू आर वन ऑफ आवर रिमेम्बरेंस, वन ऑफ आवर जिक्र। फमन ज़करक फ़क़द ज़करनी, द वन हु रिमेम्बर्ड यू, जिसने आपको याद किया, इंडीड उसने अल्लाह को याद किया। द वन हु रिमेम्बर्ड यू, ओ माय हबीब, ही रिमेम्बर्ड अल्लाह। जिसने आपका जिक्र किया, उसने गोया अल्लाह का जिक्र। तो हर जगह पे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान। नाउ फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, लेट्स से ना मुसलमान ने दरूद पढ़ा, ना किसी और ने दरूद पढ़ा, ना मुनाफिक ने दरूद पढ़ा, किसी ने नहीं पढ़ा। No one has recited salam. No one is even praying for them to say assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, or to recite Darood Ibrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. कोई भी नहीं, just for the sake of understanding. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो ये है कि Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Indeed, Allah is sending salawat upon his Habib sallallahu, and his angels, tamam farishte huzur alayhi salatu wassalam par durood bhejte hain. So even if the people, human being, agar ye durood na bhi bheje to huzur ka zikr to ho hi raha hai. Farishte durood bhej rahe hain. And how much of salawat are sent by the angels? There are many ahadith related to this. Ab zahir har farishta Allah ke hukum se they are engaged in reciting salawat. But there is a hadith, Hazrat Ka'ab bin Ahbar radiyallahu ta'ala anhu narrates. This hadith is recorded in Mishkatul Masabih, और ये किताब हर मदारिस में पढ़ाई जाती है। आलिम बनने के लिए मिशकात शरीफ का सबक दिया जाता है। Hazrat Ka'ab radiyallahu anhu mentions the mafhum of the hadith that
Sayyidah Aisha radiallahu ta'ala anha and those present mentioned Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam. When Ka'b bin Ahbar radiallahu anhu went in to visit Sayyidah Aisha and those present mentioned Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Ka'b फरमाते हैं कि एक मिनट इसको जरा देख लूं. They were talking about Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam. When Hazrat Ka'b went to meet Sayyidah Aisha Siddiqa radiallahu anha, they were talking about فَذَكَرُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم. They were talking about Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. I said, the Sahaba were talking about Huzur alayhi sallam. हर वक्त हुजूर का जिक्र करते थे. फिर फरमाया हजरत काब ने कि कोई ऐसा दिन नहीं, every day in the morning 70,000 angels descends at the holy court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Every day, रोजाना सुबह 70,000 फरिश्ते हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर के पास until Asr they are engaged in reciting salawat and salam upon Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. Every day 70,000 angels in the morning alone. अब असर का वक्त होता है तो ये 70,000 फरिश्तों की जमात तशरीफ ले जाते हैं और दूसरी 70,000 फरिश्तों की जमात नाजिल होती है. So when they ascend at the time of Asr, 70,000 descends और वो 70,000 until next morning, दूसरे दिन सुबह तक वो 70,000 फरिश्ते सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद और सलाम पेश करते हैं. So in a day 1,40,000 फरिश्ते, 1,40,000 angels per day. Let's say in Islamic calendar there are 355 days or 354 days. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से पर्दा करके 1400 साल से जायद का अरसा हो चुका. तो 1420 odd years or 1430 odd years multiply by 355 days multiply by 1,40,000. आज तक कितने फरिश्तों ने हुजूर की बारगाह में सलात व सलाम पेश किया है? वो भी in a gathering of 70,000. And in this narration it is said, जो एक बार आ गए क़यामत तक दोबारा आने का मौका नहीं है. The Jamaat of 70,000 visited once, they will not get a chance until क़यामत. तो कितने फरिश्ते? 1,430 years multiplied by 355 multiplied by 140,000 angels, billions of angels. And अभी क़यामत के लिए कितने साल और बाकी? तो हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान आज भी बयान की जा रही है. अगर इंसान ना भी करे तो क्या फर्क पड़ता है सरकार की शान के ताल्लुक से? फरिश्ते उनकी तारीफ बयान करते रहते, फरिश्ते उनका जिक्र करते रहते. अल्लाहु अकबर. And if someone rejects this narration, whereas this is wrong, they can't reject it. There are so many narrations that angels are reciting salawat and salam upon Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. Let's say for the sake of argument, if farishte bhi nahi karte, they can't do. Why? Because it will go against the Quran. Allah says, Inna Allaha wa malaikatahu. When Allah says farishte darood padhte hain, to who are these people to say, nay, this is not possible, this hadith is weak or fabricated? You are going against the Quran by saying this. जब wa malaikatahu आ गया तो फरिश्ते दरूद भेजते हैं. End of the talk. खत्म बात. अगर मान लेते हैं कि फरिश्ते दुरूद नहीं पढ़ते, लेकिन इन्ना अल्लाह तो दुरूद पढ़ता है, तो हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि कभी खत्म होने वाली नहीं है. तो अना मोहम्मद, आई एम मोहम्मद, द मोस्ट प्रेज्ड. सुभान अल्लाह. कितनी बातें इसमें आ गई कि सरकार अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जा रही है, की जा रही है, की जा. कब तक? whilst he is resting in his grave, when a person dies here in Colombo or in Chennai or in Mumbai or in Paris or in any other city, Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam is able to be present in their graves and they praise Rasulullah saying, Huwa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, another thing, जब तक हम दुनिया में हैं हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हम कर रहे हैं. आलमुल अरवा में अंबिया किराम ने तारीफ की, दुनिया में तारीफ की, आज हम कर रहे हैं, क़यामत तक लोग करेंगे. बट ऑन द डे व्हेन एवरीथिंग विल पेरिश, आसमान भी खत्म हो जाएगा, जमीन भी खत्म हो जाएगी, दरिया का समंदर का पानी सूख जाएगा, एवरीथिंग विल पेरिश. मलकुल मौत आल्सो विल टेस्ट द डेथ, हु यूज्ड टू कैप्चर द सोल ऑफ द पीपल. उनको भी मौत आएगी. अब सबको मौत आनी है अल्लाह के सिवा. हुवल हय्य, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम. अल्लाह इज द वन हु इज इटर्नल. अल्लाह अज़ली अबदी कदीम है. तो अल्लाह की तमाम मखलूक पेरिश हो गई, फरिश्ते भी नहीं, कोई भी नहीं. अब क्या सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र हो रहा है? अंडरस्टूड. व्हाई? इन्नल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है. That means that is such a time that no soul is there to respond.
कोई इंसान नहीं, कोई फरिश्ता नहीं, कोई भी नहीं है। और अगर सोल्स भी हैं, बिकॉज सोल को मौत नहीं है, रूह को फना नहीं है, देयर इज नो डेथ फॉर द सोल्स, येट दे वोंट बी एबल टू रिस्पॉन्ड। जब अल्लाह ताला फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है, whose kingship is for today, no one is there to respond. अल्लाह फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अल्लाह वाहिद व क़हार की हुकूमत। There's no one to remember Allah but the one who is sending blessing upon Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, that is Allah tabaraka wa ta'ala, उसकी ज़ात मौजूद है। तो हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम का जो नाम है अना मोहम्मद, सबसे ज्यादा तारीफ किया गया, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए, अल्लाहु अकबर। तो कयामत के बाद भी जब कोई भी हुजूर की तारीफ करने वाला नहीं होगा, दुरूद पढ़ने वाला नहीं होगा, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला तो हुजूर पर दुरूद भेजता है। So see the beauty of this one term in the hadith, where नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं मोहम्मद हूँ, सबसे ज्यादा तारीफ जिसकी की गई वो मैं हूँ। And again on the day of judgment, कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया असा अन यबअसक रब्बुक मकामम महमूदा, अन करीब, very soon ओ माय हबीब, we will give you the station of praise, हम आपको मकाम महमूद अता करेंगे। This is in the Quran, सूरह बनी इसराइल, असा अन यबअसक रब्बुक मकामम महमूदा। और हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम से पूछा गया व्हाट इज मकामम महमूद, सरकार अलैहि सलातु वस्सलाम ने इस तरह फरमाया दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर आई विल इंटरसीड, मैं शफाअत करूंगा। मकाम शफाअत, ये शफाअत का मकाम। और वो मकाम कैसा है? रिफर टू ऑल द तफासिर, इवन इन द हदीस, इन द तफासिर यू फाइंड अ टर्म यहमदुक फीहिल अव्वलून वल आखिरून। अल्लाह ताला ने जो फरमाया ए हबीब हम आपको मकाम महमूद अता करेंगे, द स्टेशन ऑफ प्रेज, तारीफ वाली जगह अता करेंगे, तो वो जगह ऐसी होगी कि हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से तफसीर की रोशनी में अल्लाह फरमाता है यहमदुक, जितने भी लोग हैं अव्वलून आखिरून, जो पहले तशरीफ लाए, जो कयामत तक आने वाले हैं, उस दिन सब के सब हुजूर के पास जमा होंगे और सब के सब हुजूर की शान बयान करते। यहमदुक फीहिल अव्वलून वल आखिरून, एवरीवन फ्रॉम द डे वन अंटिल द क़यामा, जितने भी लोग, जितने भी इंसान हैं, सब के सब, all will praise Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam. And Hafiz ibn Kathir has recorded this, and Hafiz ibn Kathir has recorded another term. वो term क्या है? यहमदुक फिल खलाइक, your praise will be done in all the creation, कुल्लुहुम व खालिकुहुम, तमाम मखलूक भी हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम की तारीफ करेंगे, यहाँ तक कि रब तबारक व तआला भी अपने फजल से हुजूर की शान बयान फरमाएगा। The creation will praise Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, and the creator Rabb tabaraka wa ta'ala, he is also praising, he will praise Rasulullah sallallahu alaihi wasallam on the day of judgment. Subhanallah. And is that all? Subhanallah. All the people, just imagine from the time of Adam alayhi salatu wasalam until today, and from now until Qiyamah, angels, everyone praising Rasul Kareem sallallahu ta'ala alayhi wasallam. इसी की मंजर कशी करते हुए सय्यदी आला हजरत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपकी शान क़यामत के दिन, रोज़े महशर सब बयान करते होंगे। All will be praising you या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। I also have a wish, मेरी भी ख्वाहिश है, क्या है? काश महशर में जब उनकी आमद हो, I have a wish के काश या रसूल अल्लाह जब महशर में आप तशरीफ लाएंगे, भेजे सब उनकी शौकत पे लाख सलाम, सब everyone will be engaged in praising you या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर कोई सरकार की तारीफ बयान करता होगा। So when everyone is engaged, obviously Imam Ahmad Raza also will be engaged, everyone, but he has a wish that ya Rasulullah, I have a wish that the kalam which I composed, Mustafa Jane Rahmat pe लाखों सलाम, शमअ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, ये कलाम मुझे या रसूलल्लाह मैदान महशर में पढ़ने की इजाजत चाहिए। तो मेरी ख्वाहिश है काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, या रसूलल्लाह आपके साथ जो फरिश्ते होंगे ना कुदसी, those angels who will be accompanying you या रसूलल्लाह, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें, those angels जो आपके साथ होंगे, आपकी खिदमत, वो मेरी तरफ इशारा करे, हाँ रज़ा, you also start ओ रज़ा, तो मैं शुरू कर दूं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमअ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। Allahu Akbar. I thought I would be able to talk about this hadith today, but तकरीबन
45 मिनट्स हो गए, अभी हम लफ्ज़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हैं और इस पर बात करते करते हम सब थक जाएंगे, लेकिन हुजूर की शान बयान नहीं कर सकते। क्यों? ये हकीकत है कि अल्लाह ताला ने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसे फजाइल से नवाजा, जैसा इमाम बुसरी स्टेट्स इन क़सीदतुल बुर्दा, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि, लैस लहू हद्दुन, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कमालात, उनकी शान, उनके औसाफ, उसकी कोई हद ही नहीं। देयर इज नो लिमिट ऑन द एक्सेलेंस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फइन फضل रसूलिल्लाह लैस लहू हद्दुन फयुअरिब अन्हु नातिकुम बिफमी। सब के सब मिलकर भी सरकार की तारीफ बयान करेंगे, सबकी ज़बानें सूख जाएगी, कलम सूख जाएंगे, लेकिन सरकार की तारीफ कोई कंप्लीट नहीं कर सकता। और गालिबन अल्लामा जामी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर। ए जमाल वाले, ए साहिबे जमाल, ए तमाम इंसानों के सरदार, वो द लीडर ऑफ द मैनकाइंड, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर। आपके चेहरे ज़ेबा के नूर के सदक़े में तो चांद भी मुनव्वर हुआ है। Even the moon is bright because of the barakah of the noor of your face, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yumkinu as-sanam. And this is impossible for all the people to comprehend, to complete your praise. Kama kana haqquhu, जैसा हुजूर की शान तारीफ करने का है वैसा कोई बयान कर ही नहीं सकता। ला युमकिनु सना कमा कान हक़्क़ुहु। बाद खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। आफ्टर अल्लाह तबारक व तआला अगर कोई जात है तो इट इज यू या रसूलुल्लाह। किस्सा मुख्तसर, दैट्स इट। और इसी तरह से कि आला हजरत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाहि अलैहि ने भी फरमाया, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। सो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये, इस हदीस के इस एक जुमले में हमने कुछ अकाइद सीखे। Some of the aqaid. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हदीस पाक का एक जुमला, अना मोहम्मद, आई एम मोहम्मद द मोस्ट प्रेस। कितने अकाइद पता चले? 1, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम is the first creation. That is why he was mentioned in Alamul Arwah amongst the Anbiya Kiram alayhi salatu wa taslim sarwa. And Huzur alayhi salatu wassalam is the source for the blessings upon Anbiya and Mursaleen. तमाम नबी और रसूलों पर जो फजीलतें अल्लाह ने दी है, नबूवत और रिसालत अता फरमाई, ये हुजूर के सदक़े में है। और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाना हम पर तो फर्ज है, अंबिया किराम पर भी फर्ज है। लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्न। Without mentioning रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम you can't succeed। और हर नबी ने अपने अपने दौर में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र फरमाया। That means they all regarded our नबी as the master। और वो बात तो रह गई कि मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे नमाज अदा करके दुनिया को दिखा दिया कि इमाम तो या रसूल अल्लाह आप ही है। नमाज अक्सा में था यही सिर्फ आया हो मानी अव्वल आखिर के दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। एंड ऑल्सो कब्र में जब तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहचानेंगे नहीं, जब तक अनलेस वी रिकॉग्नाइज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सक्सीड नहीं होंगे, तो कब्र में सरकार अलैहिस्सलाम का जिक्र होना, हुजूर की पहचान, दिस इज ऑल्सो अ मस्ट। और एक और अकीदे का पॉइंट, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनियावी जिंदगी में जमीन के ऊपर सहाबा के दरमियान हैं, लेकिन उस वक्त जितने सहाबा शहीद हुए या जितनों का विसाल हुआ, उनकी कब्रों में भी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम नजर आए। ये भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजिज़ा। और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान ये है कि सबकी तारीफ खत्म हो जाएगी, लेकिन सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ कभी खत्म होने वाली नहीं है। तब से लेकर अब तक, अब से लेकर क़यामत तक, क़यामत के बाद अल्लाह ताला भी तो हुजूर की शान बयान फरमाता, और रोज़े महशर भी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बयान हो रही है। सो बेसिकली द टर्म मोहम्मद इज सो डीप इन मीनिंग, इतनी गहराई इसमें कि हम इसका इहाता नहीं कर सकते। दिस इज वाई बुजुर्गान दीन फरमाते हैं,
एक फारसी का शेर है, वो याद नहीं है मुझे, जिसका मतलब ये कि 1000 बार भी गुलाब से अपने मुंह को साफ कर लो, फिर भी हुजूर का नाम मोहम्मद लेना बेअदबी समझते हैं हम। ये है सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान। अल्लाहु अकबर। तो इंशाअल्लाह ऑन मंडे वी विल कंटिन्यू दिस क्लास विद द सेकंड टर्म अना अहमद, मैं अहमद, जिसका मतलब द वन हु प्रेजेस अल्लाह द मोस्ट। हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह की सबसे ज्यादा तारीफ करने वाले, वो कैसे, हाउ इज इट, वो भी इंशाअल्लाह हम कुरान और हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह मंडे की क्लास में आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इन कलिमात को कबूल फरमाए। कुछ खामी हो तो अल्लाह अपने फजल से मुआफ फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत हम सबको अता फरमाए, हर किस्म की आफत और बलियात से हिफाजत में रखे, ईमान वाली जिंदगी, ईमान वाली मौत और मौत के वक्त सरकार गौसे पाक का दीदार भी नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी मौलाना यूसुफ साहब की सवाल करना। जी हजरत, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको तो आपका एक्सप्लेनेशन तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा ही ऐसे होता है कि उसमें कोई सवाल ही ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस उन्वान, इस टॉपिक से रिलेटेड हमें एक सवाल ये आया था कि वहाबी अक्सर ये बुखारी शरीफ की ये हदीस मिसकोट करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी तारीफ इतनी ना करो, मतलब मेरी तारीफ में गुलो मत करो जिस तरह के ईसा, मेरे भाई ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी उम्मतियों ने कर दिया था। गालिबन इस तरह का मफहूम कुछ बयान करते हैं। इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? अब इसका आंसर तो इसी हदीस में मौजूद है। हुजूर ने क्या फरमाया, जिस तरह ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से गुलू, एग्जेजरेट किया। अब गुलू यानी एग्जेजरेट का माना क्या हुआ, जो चीज ना हो वो बयान करना। तो मेरे ताल्लुक से ऐसी चीज बयान मत करो जो मुझ में नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम में जो नहीं था वो क्रिश्चियंस ने क्या किया, उनको अल्लाह का बेटा बना दिया। तो जिस तरह क्रिश्चियंस ने ईसा अलैहिस्सलाम की तारीफ में करते करते अल्लाह का बेटा बना दिया, ऐसा मेरे मौजिज़ात को देख के मुझे अल्लाह का बेटा मत कहना। लाइक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा किया, मादरजात अंधों को शिफा दे दी, कोढ़ वालों को शिफा दे दी। तो ये मिरेकल्स को देख के उनको अल्लाह का बेटा बना दिया था ना। तो सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जैसे क्रिश्चियंस ने किया एग्जेजरेशन, मेरे साथ वो मत करना। मैंने भी अपने इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए, सूरज को वापस बुला लिया। तो ऐसे मौजिज़ात को लेकर मुझे अल्लाह का बेटा ना बनाना। यानी जो है वो कहो, और क्या है वो तो हमने अभी बता ही दिया ना मोहम्मद में। जो नहीं है, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का बेटा नहीं हूँ, तो मुझे अल्लाह का बेटा मत कहना। तो इसी हदीस में इसका जवाब है। तो अगर कोई इस हदीस को लेके कहता है कि हुजूर की तारीफ नहीं करनी चाहिए, तो वो हदीस को गलत तरीके से पेश कर रहा है, जबकि हदीस में एग्जेजरेशन का लफ्ज है, गुलू का लफ्ज है। जो ना हो उसका बयान करना, यानी मैं अल्लाह नहीं हूँ, अल्लाह का बेटा नहीं। वो तो हम मानते ही नहीं है कि अल्लाह के बेटे हैं या अल्लाह है, हम तो अल्लाह का बंदा मानते हैं। और ऐसा बंदा मानते हैं कि वह अन्नहु खैरु खल्क़िल्लाहि कुल्लिही, सबसे बेहतर मखलूक में। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब दीगर अहबाबिन को जो भी सवालात होंगे, चूंकि हमारा सेशन का एक वक्त है, तो आप लोग बेहतर है कि आपके इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई सवालात हो तो आप हमें टेक्स्ट कर दें। इंशाअल्लाह रहमान जो ही वक्त मिलेगा इंशाअल्लाह उसका जवाब आप लोगों को पहुंचा दिया जाएगा ग्रुप के जरिए से, आपका सवाल के साथ आपका जवाब। और जब सवाल लिखें तो इस तरह टेक्स्ट करें कि पहले आपका नाम और आपकी सिटी, आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, उसके बाद सवाल करें। सवाल आप इंग्लिश में या उर्दू में, ये 2 लैंग्वेज में करें, मतलब हिंदी वगैरह में ना करें, क्योंकि मतलब उसको टाइप करना मुश्किल। Either in English or in Urdu. मुझे भी हिंदी नहीं आती है। इंशाल्लाह Monday we'll meet at 9 PM. इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। One more request from side. जी। हुजूर, जैसे आप पढ़ाते हैं उस वक्त एक जैसे हदीस हो या फिर कुछ स्क्रीन उसकी शेयर कर दिया करें, सो दैट इससे हम लोग को कैप्चर करने में इजी होगा। मैंने आपको एक तो नोट्स लिखने के लिए कहा, और जो मैंने ये नोट लिखा है वो मैं आपको उसकी PDF व्हाट्सएप में कर दूंगा। डोंट वरी। ओके, ताकि थैंक यू सो मच, वो और आसानी हो जाएगी। कोशिश करते हैं कि आप जो भी सजेशन है, अगर ये कोई IT रिलेटेड है, मतलब स्क्रीन शेयरिंग या फिर ग्रुप इसके ताल्लुक से है, तो या तो आप उवैस मदनी से कांटेक्ट करें या अब्दुल्ला भाई से कांटेक्ट करें या इज़दान से, इन दोनों से कांटेक्ट करें। अगर सवाल और जवाब के ताल्लुक से तो आप मुझे भेजें, मैं इंशाल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर जो मैंने नोट्स बनाए हैं,
कुछ में मैंने अपने लिए मेरे जहन में रहने के लिए कुछ नोट्स बनाए, कुछ में हदीसें मैंने जमा की है। तो आप उसमें जो है ना, आप उसकी प्रिंट आउट निकाल के आपको जो एडिशन, जो नोट्स आपने लिखे, इसलिए कि जो नोट्स में नहीं है वो भी मैंने बयान किया है। सो इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन, ताकि आपको कभी इंशाल्लाह किसी को समझाने के लिए या बयान के लिए इंशाल्लाह काम आ जाए। ठीक है, इंशाल्लाह। ओके, जज़ाकल्लाह। आपने बाकी लोग